Hello guys, welcome to my channel. Our topic for today is enamel. In this we'll be discussing about the interaction properties of enamel. So first of all, what is enamel? It is a non-living structure of the tooth. ठीक है, avascular है और insensitive है. Now this would help us differentiate studying the properties of enamel and dentine and the other layers. It would help us differentiate as to why some structures fracture easily or they are more affected by caries or bacteria and the others are less. ठीक है, कुछ regenerate हो सकते हैं, वापस बन सकते हैं और दूसरे structures नहीं बन सकते. So since we are seeing that it is a non-living structure, it does not contain any cell, so once destroyed it cannot be laid back. इट इज़ इनसेंसिटिव, इसमें कोई न्यूरल इनोवेशन नहीं है. इनामल में अगर कुछ भी होता है तो कोई सेंसेशन नहीं होता है. देयरफॉर इट इज़ ओनली आफ्टर एट्रीशन ऑफ द टूथ दैट पीपल कंप्लेन ऑफ सेंसिटिविटी बिकॉज डेंटिन लेयर्स आर exposed or they are very close to the occlusion after that. Now, what is enamel? It is a hard crystalline matrix which covers the anatomical crown of the tooth. Anatomical crown मतलब इट इज़ दैट क्राउन जो सीमेंटो इनामल जंक्शन के ऊपर हो. ठीक है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय अमीलोब्लास्ट एंड इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द एनाटॉमिकल क्राउन. नाउ सी, इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिवाइडेड द प्रॉपर्टीज़ इनटू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले it is a very brittle structure. Okay, because it is very brittle it is fractured easily. अब ये brittle क्यों है वो हम लोग उसकी chemical properties में देखेंगे. Now what are the other 5 properties? पहले color. So it is translucent. Why is it translucent? Because it is a homogeneous structure and it has high mineral content. ठीक है, इसका mineral content बहुत high है और एक homogeneous structure है, therefore it is translucent. Next, thickness. So thickness of enamel varies in different places and different tooth. Mostly in general अगर हम लोग देखें तो in the cuspal region इसका thickness ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे occlusal forces लगते हैं basically, तो वहाँ पे ज़्यादा thickness चाहिए हम लोग को cuspal region में. ठीक है, to make the cusp strong and bear the occlusal forces also. So in the cuspal region the thickness of enamel is around 2.5 millimeters and it goes on thinning in the cervical area. ठीक है, नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ इनामल मैक्सिलरी मोलर्स में लिंगुअल कस्प में ज़्यादा होता है, वेयर एज मैंडिबुलर मोलर्स में बकल कस्प में. वाई सो? बिकॉज ऑफ द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल कस्प. व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल कस्प एंड नॉन फंक्शनल कस्प? फंक्शन मीन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं टीथ? बेसिकली दैट इज मैस्टिकेशन. अब मैस्टिकेशन के टाइम पे मैक्सिलरी मोलर्स के जो कस्प कॉन्टैक्ट कर रहे हैं विद द मैंडिबुलर मोलर्स, वो दोनों कस्प होंगे फंक्शनल कस्प रिस्पेक्टिवली ऑफ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर मोलर्स. तो फंक्शन के टाइम पे मतलब खाना चबाने के टाइम पे मैक्सिलरी मोलर का लिंगुअल कस्प इट कॉन्टैक्ट्स विद द मैंडिबुलर मोलर बकल कस्प. देयरफॉर बोथ द फंक्शनल कस्प विच इज लिंगुअल ऑफ मैक्सिलरी एंड बकल ऑफ द मैंडिबुलर, these both are having high thickness of enamel. ठीक है, इन दोनों के कस्प में ज़्यादा थिकनेस हो गया as compared to other cusps. What is the specific gravity of enamel? It is 2.8. What is the hardness? See, if we study about the hardness of enamel, तो क्या पता चलता है कि जो outer surface है enamel की, in this region it has more amount of hardness as compared to the one which is near the dentino-enamel junction. Why is it so? It is because of post eruptive maturation. Eruption के बाद maturation होने की वजह से. Next, it is semi permeable. ठीक है, कुछ कुछ substances को ये allow करता है तो वो उनसे इससे पास हो सके. क्या क्या? like iodine, urea and some dyes. Okay. So with this we have seen the basic properties of enamel. Now because of its high mineral content and its brittleness also,
ठीक है। इनामल देखो, सबसे पहले तो इसका हाई मिनरल कंटेंट है, तो क्या है, इट इज़ द हार्डेस्ट कैल्सिफाइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और इसका हाई मिनरल कंटेंट है, उसकी वजह से क्या है, ये ब्रिटल है, ठीक है। तो ये फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है अगर मास्टिकेटरी फोर्सेस हम लोग कराएंगे तो। और ये नॉन कंडक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसी की वजह से क्या होता है कि सेंसिटिविटी जब इनामल इंटैक्ट हो, प्रॉपर हो, ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशंस एक पर्टिकुलर पर्सन में, तो यंग, स्पेशली यंगस्टर्स, तो उसमें हम लोग को सेंसिटिविटी नहीं होती है, मतलब झंझनाहट नहीं होती है, ओके। Next, coming on to the chemical properties of enamel. The chemical composition of enamel, it could be divided into two. One is the inorganic material, next is the organic material. So, inorganic constituent हम लोग ऑलरेडी देखे कि ये सबसे ज़्यादा हाई मिनरल कंटेंट है, तो ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है इसमें, 96%. Whereas organic substance plus water वो कितना है, it makes about the 4% of the chemical composition of enamel. अब इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इनामल का, इट इज़ द हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इनामल इज़ फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। क्या है उसका केमिकल फॉर्मूला, Ca10PO4OH4 होल ट्वाइस। दीज क्रिस्टल्स दे आर हेक्सागोनल इन शेप, या फिर प्लेट शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं तो ये हम लोग को हेक्सागोनल शेप्ड क्रिस्टल्स दिखेंगे, बट अगर हम हाई रिजोल्यूशन में देखें तो विल सी रॉड्स विथ इक्विलेटरल हेक्सागोन, ठीक है, रॉड्स दिखेंगे हम लोग को। नाउ ये जो क्रिस्टल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन इनामल रॉड्स या फिर इनामल प्रिज्म्स के फॉर्म में ये अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब ये क्रिस्टल्स दे आर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनामल। समटाइम्स ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स हैं, इसमें कैल्शियम है, कभी कभी इसकी जगह फ्लोरा एपेटाइट क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं विच कंटेन्स फ्लोराइड। अब फ्लोराइड प्रेजेंट है जिन प्लेसेस में फ्लोरोसिस होता है, ठीक है, मतलब पानी में फ्लोराइड प्रेजेंट हो, वहाँ पे हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की जगह सम अमाउंट ऑफ फ्लोरा एपेटाइट क्रिस्टल्स भी मिल सकते हैं। अब फ्लोराइड क्या करता है, इट मेक्स इनामल मोर टफर एंड मोर रेजिस्टेंट टू केरीज, ठीक है। बैक्टीरिया जो हैं जो केरीज कॉज करते हैं उनके लिए और ज़्यादा रेजिस्टेंट बना देगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड वाटर। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे प्रेजेंट है, लेस लाइक नेटवर्क, मतलब एक जाल बना के इन क्रिस्टल्स के अराउंड इट मेक्स अ लेस लाइक नेटवर्क। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, इनामल मैट्रिक्स प्रोटीन्स, ठीक है। रिमेंबर दिस दैट द इनामल मैट्रिक्स प्रोटीन दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इनामल, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं इनामल का, इंस्टेड वो मिनरलाइजेशन, क्रिस्टल ग्रोथ, ये सब में हेल्प करेंगे ये प्रोटीन्स, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प नहीं करते हैं, जबकि जो कोलेजन है, डेंटिन और बोन का प्रोटीन, वो स्ट्रक्चरल फंक्शन शो करेगा। तो डेंटिन, बोन, ये सारे में जो प्रोटीन्स हैं वो स्ट्रक्चर में हेल्प करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। वेयर इज इन इनामल द प्रोटीन्स, द इनामल मैट्रिक्स प्रोटीन्स, दे हेल्प इन regulation of crystal growth, mineralization, but they do not form the or do not contribute to the structure of enamel, okay। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो है वो क्या करता है, एनवेलप करता है सारे हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स को, ठीक है, उसको एक एनवेलप की तरह इनक्लोज कर लेता है। देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ इनामल मैट्रिक्स प्रोटीन्स विच आर अमीलोजेनिन एंड नॉन अमीलोजेनिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब अमीलोजेनिन और नॉन अमीलोजेनिन क्या होते हैं, सो अमीलोजेनिन प्रोटीन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग प्रोटीन्स। नॉन अमीलोजेनिन जो है वो 10%, अमीलोजेनिन 90% प्रेजेंट होता है। नॉन अमीलोजेनिन दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग प्रोटीन्स, ओके। सो दीज प्रोटीन्स दे आर रिच इन विच ऑल कॉम्पोनेंट्स, विच ऑल, मतलब इसमें क्या क्या अमाइनो एसिड्स होते हैं, लाइक प्रोलीन, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन और ल्यूसिन, ठीक है। तो इसमें होता है प्रोलीन, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन एंड
ल्यूसिन। अब कौन है? नहीं खोलूंगी। क्यों? बाहर जाना। अवनी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यार। नेक्स्ट है नॉन अमीलोजेनिक प्रोटीन्स। अब नॉन अमीलोजेनिक प्रोटीन्स में क्या क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स, इट इज़ ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड सेरीन। ठीक है, तो अमीलोजेनिन में है प्रोलीन, हिस्टीडीन, ग्लूटामीन, ल्यूसिन। नॉन अमीनोजेनिक प्रोटीन्स में है ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड सेरीन। अब नॉन अमीनोजेनिक प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इनामिलीन, टेफ्टलीन, अमीलोब्लास्टिन। ठीक है, सो अब इनके फंक्शंस। तो जो अमीलोजेनिक प्रोटीन्स हैं ये हेल्प करते हैं हमें क्रिस्टल ग्रोथ में, इनामल के क्रिस्टल्स को इंक्रीज़ करने में, ग्रो करने में, साइज में। वेरेस जो नॉन अमीलोजेनिक प्रोटीन्स हैं दे हेल्प इन मिनरलाइजेशन ऑल्सो एंड क्रिस्टल ग्रोथ, स्पेशली टफ्टलीन। ठीक है, ये हम लोग जब इनामल मिनरलाइजेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे कि टफ्टलीन जो है वो कैसे मिनरलाइजेशन में हेल्प कर रहा है एंड ऑल्सो इट इज़ रेगुलेटिंग क्रिस्टल ग्रोथ। ओके, so this is it about the properties of enamel. In the next video we'll be discussing about the life cycle of ameloblast cells, then various structures of enamel and how the enamel matrix is formed. I hope I have made myself clear. Thank you. Keep visiting.